مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی اور لاک ڈاؤن کے خلاف جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مظاہرہ کیا۔ شرکا نے بھارتی وزیر اعظم اور فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے خلاف اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں دنیا بھر سے مختلف مکاتب فکر، کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی مختلف شخصیات کے علاوہ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے مرکزی رہنما رانا بشارت نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ تحریک کشمیر حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجابت نے کہا کہ جب سے بھارت کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا ہے، تب سے مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے اندر بھرپور طریقے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ مظاہرین ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچموں کے علاوہ پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ امن قائم کرنے کے لیے فوج کشمیر بھیجے تاکہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہوں۔ It's a human rights issue. It's not a Pakistan-India issue, it's a human rights issue. That is very important to get through to the international community. And by the international community, I mean the leaders, the Security Council, the G7, US, Britain, France, Germany, etc., China. They are sitting on their backsides doing nothing. Why? Because Kashmir doesn't have any oil. Because Kashmir doesn't have any commercial interest for these people. All they're after is money. They don't care about humans. And this is why we are here to raise the issue that this is a human rights issue. It's nothing to do with money. And I won't take any other names, but India seems to be really thrashing the human rights principles in Kashmir, and no one is doing anything. No one. And by no one I mean the people who have the power to do something, they're not doing anything. Just to add to what all others have said, the main concern is haven't we learned a lesson from history? How many times are we going to sit back and just appease the politicians and let genocide happen? There's no use feeling sorry once it's happened. It happened in Nazi Germany, we did not do anything about it. It happened in Bosnia, we did not do anything about it. It's happening all over again, and all we are doing, the whole world is doing, is watching. So that'll be our message, that repeating it after 50 years and saying, oh sorry, we could have done something, rather than doing something now. And now is the time we need to step in. یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے، اور اس کو ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور نہ کہ صرف پاکستانی یا کشمیری اس میں انوالو ہوں، انڈیا کے لوگ بھی انوالو ہوں، باقی نیشنز بھی انوالو ہوں۔ We have arrived in Geneva outside the United Nations office to urge an appeal to open their eyes. Please help those poor Kashmiri people in Kashmir suffering from day to day. This has been going on for 72 years. Why has the world turned a blind eye towards them? برادری کے عالمی رہنماؤں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ پچھلے 4 اگست سے لے کر اس وقت تک جو کرفیو نافذ ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ کرفیو اٹھانا چاہیے۔ کشمیریوں کی وہ جو قید و بند کی صوبتیں ہیں وہ بند کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر جو کشمیر کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے، ہم اس میں بھرپور اپنی پارٹیسپیشن شو کرانا چاہتے ہیں۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ انڈیا نے اور مودی نے جو شب خون مارا ہے، آج 30 دن ہو گئے ہیں، ادھر کرفیو کے حالات ہیں، ہمارے بہن بھائی گھروں میں محصور ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ادویات نہیں ہیں۔ تو ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا رول ادا کریں۔ اس پروٹیسٹ کا مقصد ہے کہ کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے آواز بلند کی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو مودی نے وہاں پہ کشمیر کے اندر قبضہ کر لیا اور بے گناہ مسلمان جو بھائی ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے اور جناب بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ آج کے پروٹیسٹ سے یونائٹڈ نیشن کے جو لوگ ہیں اور جو اقوام عالم ہیں ان کو یہ میسج مل جائے کہ ہم لوگ کشمیر کے لیے اکٹھے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر میں جو بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مظالم کیے جا رہے ہیں، اتنے دنوں سے کرفیو لگا، اس کا وہ ان کی ہیلپ کریں۔ ہمارا مطالبہ ہے یونائٹڈ نیشن سے اور یہاں کی ہیومن رائٹ کونسل سے کہ ہم اس پابندیوں کو فوری طور پر لفٹ کیا جائے اور وہاں پہ آزادانہ نقل و حرکت کی جائے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سے آئے حریت رہنما الطاف وانی اور سردار امجد یوسف اور حسن بنا نے کہا کہ اب بھارت زیادہ دیر تک کشمیریوں پر اپنا قبضہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے مرکزی رہنما سردار طاہر نذیر اور ویسٹ برومچ کے صدر اکرم شرازی کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی
सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत की वजह से हिंदुस्तान की हुकूमत को बावर करवाए कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह के मुताबिक उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादियत दिया जाए। या हुसैन सलाम या हुसैन। नोटिंगम की मदनी मस्जिद के ज़ेर एहतमाम करबला से कश्मीर तक के उन्वान से एक पुरवकार कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात शहजाद अरमान के इस रिपोर्ट में। नोटिंगम की मदनी मस्जिद में करबला और कश्मीर के हवाले से एक बावकार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम अजीज, मौलाना रज़ाउल हक सियाकवी और चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चौधरी इब्राहिम ज़िया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका का कहना था कि वाक़या करबला यजीदी और तागूती कुव्वतों के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की नई मिसालें कायम की जा रही हैं, जबकि अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा कोई भी किरदार अदा करने में यकसर नाकाम रहे हैं। और इंसानियत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अब दुनिया जो इस वक्त इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसानी हकूक़ की बात कर रही है, जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, इस दौर में भी अगर इंसानियों के साथ ही अलमिया हो रहा है और उसके साथ दुनिया गूंगी बहरी है, तो ये हमारी इस तारीख़ का एक स्याह बाब होगा। कश्मीर में जो जुल्म व सितम भारत की तरफ से ढाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज और अपने दर्द का इजहार के लिए पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद है, या वो अफराद जिनको जुल्म के ख़िलाफ़ जिनका दिल कुड़ता है, वो अफराद एहतजाज कर रहे हैं। ये सारा कुछ इस मुहज़्ज़ब दुनिया के सामने हो रहा है, जो अफसोसनाक सूरत हाल है। मोदी उससे कोई खैर की तवक्को पहले भी नहीं थी। ये तागूती ताकतें ये बतलाना चाहते हैं कि जो भी यजीदी कुव्वत जो कल भी जुल्म इस्तबदाद में आगे आगे थी, आज भी तागूती ताकतें और यजीदी ताकतें आज भी इंसानियत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। उसी के पैगाम को आगे ले जाने के लिए और दुनिया आलम के अंदर बताने के लिए कि यजीदियत कल भी थी, आज भी है, रूह बदलती रहती है। कभी वो बगदाद में थी, कभी करबला में थी, पर आज कश्मीर में वही कुव्वत, वही ताकत कश्मीर के अंदर जुल्म इस्तबदाद की चक्की में पिसने वाले जो मुसलमान हैं, इंसान हैं, कश्मीरी हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शोहदाए करबला और कश्मीरी अवाम के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। शहजाद अरमान, नाटेटो न्यूज़, नोटिंगम। यौम आशूरा के मौके पर आयरलैंड में भी या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। डबलिन में आज़ा खाना ज़ोहरा के ज़ेर एहतमाम 10वीं मुहर्रम और शहादत इमाम हुसैन मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में आज़ा खाना ज़हरा ने बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी दीनी और फ़िक़ही वाबस्तगी का इजहार किया। मजलिस आज़ा में शिरकत करने वाले अफराद ने इस दिन की मुनासबत से गिरियाज़ारी की और नुहाख़्वानी भी की गई। अज़ादारों ने इस आज़म का इजहार किया कि वो अपनी ज़िंदगियाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसूलों पर गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर सुरखरू हो सकें। तमाम दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो किसी मुल्क या मुमलकत में किसी भी इलाके में ज़िंदगी बसर करते हैं, मज़लूम करबला की शहादत के अय्याम मना रहे हैं। सुन्नी शिया सब मुख्तलिफ जगहों पे इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। 20 मोमिनीन मुख्तलिफ इलाकों से आयरलैंड के इस अज़ाखाने में जमा हुए और सब ने मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश की। डबलिन में अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मजालिस अज़ा मुनक़्क़द हुई। मजालिस अज़ा का जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेन पैगाम है कि इस दुनिया के जो भी ऑप्रेसर हैं, जो भी ज़ालिम हैं, उनके खिलाफ़ खड़े हो जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और यजीदों के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये मजलिस का मैसेज था। शुहदाए करबला के मसाइब का पुरसोज जिक्र सुनकर हाज़रीन मजलिस आबदीदा हो गए। फिजा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हुसैन
हमारे हैं। जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों में गर्म दूध जलेबी और मुख्तलिफ अनवा के मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं और हुसैनी लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ फैसल मिर्जा, डबलिन, आयरलैंड। जामिया कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम में मुनक्किद हुई, जिसमें रोयत हलाल कमेटी के मरकज़ी चेयरमैन मुफ्ती मनीबुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बर्मिंघम में कादरिया ट्रस्ट के चेयरमैन पीर तैयबुर रहमान कादरी ने कादरिया ट्रस्ट मस्जिद में शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए रोयत हलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मुफ्ती मनीबुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुफ्ती मनीबुर रहमान, MP खालिद महमूद, चौधरी खादिम हुसैन, राजा इश्तियाक, मौलाना रब्बानी अफगानी और दीगर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शहादत इमाम हुसैन हकीकत में इंसानियत की फतह और इस्लामी असूलों की सरबुलंदी है। उनका कहना था कि ये अजीम कुर्बानी हर साल मुसलमानों को इस बात की याद दिलाती है कि फस्को फजूर की ताकतों का मुकाबला करने के लिए जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। मुकर्रीन का कहना था कि हमें कश्मीर में भारतीय साम्राज्य से बरसरे पैकार अवाम की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने हक पर कायम रहते हुए सुन्नत इमाम हुसैन को जिंदा रखा। इस मौके पर मुफ्ती मनीबुर रहमान, पीर तैयबुर रहमान कादरी, MP खालिद महमूद, इलामा रब्बानी अफगानी और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जालिम जाबर ताकतों और निज़ाम से टकराने का दर्स हमें करबला से मिलता है। करबला हक परस्तों और हुर्रियत पसंदों की दरसगाह है। इसी जज्बे के तहत हम कश्मीरियों को भी आज़ादी दिलाएंगे। इमाम अली मकाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी जमी आवान व अंसार अहले बैत अतहार ने 61 हिजरी आज ही की तारीख को मैदान करबो बला में तारीख़ इंसानियत की बेमिसाल और बेनज़ीर कुर्बानियाँ पेश की, जिनकी याद आज तक मनाई जा रही है और क़यामत तक मनाई जाती रहेगी कि गर्च ताबदार है गेस हुए दजलो फुरात, काफ़िला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। सो आज का की करबला अपने हुसैन की मुंतज़िर है। या हुसैन के नारा लगाने वाले तो करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन कोई हुसैन बनकर भी तो आए, कोई हुसैनी अक़दार का अमीन भी तो आए। आजकल मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ एक माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, जुल्म और सितम की इस सदी के अंदर इंतहा हो चुकी है कि उनकी कोई ख़बर बाहर नहीं आ रही, टेलीफोन बंद हैं, मीडिया बंद है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, दवाइयाँ नायाब हैं, खाना पीना नायाब है। तो पूरी दुनिया के इंसानों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इंडिया ने, हिंदुस्तान ने जिस बर्बरियत और जुल्म का इंतहा किया है, मुस्लिम उम्मा को ये ज़रूरी है, उन पे फ़र्ज़ है कि उन मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी करे। सईद शुहदा इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र हुआ। वहाँ मकबूजा कश्मीर में 8 लाख से ज़ायद फ़ौजियों के हिसार में जुल्म व बर्बरियत की जो बदतरीन मिसाल कायम की गई, और इस दौर का करबला जिस दौर के यजीद के जानशीन ने जिस तरह कायम किया, मैं समझता हूँ वहाँ इस जुल्म और सितम पर सदा एहतजाज बुलंद करना न सिर्फ बरतानिया और यूरोप के मुसलमानों की जिम्मेदारी है, बल्कि दुनिया भर के हर बाशऊर इंसान की जिम्मेदारी है। We are blessed that we've got gathering of all of the ulama from different sects, and especially speaking about the 10 Muharram, the importance of the struggle that was established on 10th of Muharram, that we need to learn and then see how we can bring that struggle forward to remove the calamities on humanity. आज का दिन 10 मुहर्रमुल हराम का है, जहाँ पे हज़रत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया के अंदर जुलूस के अंदर और उनके उसवा हसना को याद करके आज दुनिया उनकी याद कर रही है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है, और हम पूरी दुनिया इंसानियत से ये मुतालबा करते हैं कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए और हिंदुस्तान को उस जुल्म से रोका जाए। आखिर में शहदाए करबला के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर में जुल्म की चक्की में पिसने वाले कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।